Alrighty, so this right here is question number 94. Question number 94 says, figure 5.1 shows a coil of wire wrapped around a plastic tube. Inside the tube there are two pieces of soft iron. When the switch is closed, the compass needle points in the direction of the magnetic field produced at each position. You may ignore the magnetic field of the earth in this question. On figure 5.1, mark arrows in compasses A, B, C to show the direction of the magnetic field at each position. So again, right hand rule for the solenoid. Okay? So what are we going to do? Right hand rule. If you think of a rod, say you're holding the rod with your right hand. जो वायर है वो पीछे से आगे आ रहा है या आगे से पीछे जा रहा है? आगे से पीछे से आगे आएगा. So the north is supposed to be to the right. The north is supposed to be to the right. So the north is going to be here. The north is supposed to be here and the south is supposed to be here. सही है. North से magnetic field बाहर जाती है, north से magnetic field अंदर आती है. Which one is it? North से magnetic field goes outside. So this C right here is going to be pointed in this direction. Of course, this magnetic field is going to go like this. So this one right here is going to be pointed in this direction, and this one right here is going to be pointed somewhat in the left or the right direction. Does that make sense? Achha. Then the question says, when the switch is closed, the two pieces of soft iron in the tube become magnets and move. Mark the poles formed on each piece of iron. जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? North. यहाँ पे south होना चाहिए. यहाँ पे again north होगा. यहाँ पे क्या होगा? South होगा. And again, when the question says that they are going to move in which direction? They are going to move close to each other, towards each other. Why? क्योंकि north south क्या करेंगे? They are going to attract each other. हाँ? वापस कहो बेटा. नहीं तो एसेंशियली आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल सोलेनॉइड का है वही नॉर्थ साउथ पोल जो है वो मैग्नेट्स के ऊपर होना चाहिए ना. ऐसा तो पॉसिबल नहीं, वो सॉरी अंदर जो सॉफ्ट आयरन पीसेस हैं वो उसके ऊपर वही पोल्स होने चाहिए. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सोलेनॉइड के नॉर्थ पोल साउथ पोल्स कुछ और हों और अंदर जो पीसेस हैं उनके नॉर्थ और साउथ पोल्स डिफरेंट हो. दैट्स नॉट पॉसिबल. सही है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड नहीं एक्चुअली. हाँ सही है, दैट्स कूल. या सही है. सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दीज pieces of soft iron. So explain how the iron move, how the pieces of iron move. So state and explain. State क्या करेंगे? The iron pieces will move towards each other. Pieces will move towards each other. So the pieces will move towards each other. And the explanation is what? Opposite poles will attract. Say because opposite poles. अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाई करते हैं पोल्स, ऑपोजिट पोल्स यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई कर दो. लेफ्ट पीस जो है उसका साउथ नहीं, सॉरी लेफ्ट पीस का जो है वो क्या है? नॉर्थ है. सही है. So the piece on the left उसका north and the piece on the right उसका south. सही है. So we are going to say north of the left piece and south of the right piece will attract each other. 2 marks. ऊपर जहाँ पे आप पोल्स मार्क कर रहे हो वो 1 मार्क का है. ये पार्ट जो है यहाँ पे लिखे हुए ना आगे मार्क्स, दैट्स 2 points. 2 मार्क्स का है, मतलब आपको 2 points लिखने हैं. स्टेट करने का 1 मार्क मिलेगा, एक्सप्लेन करने का दूसरा मार्क मिलेगा. सो इफ यू जस्ट राइट दैट द पोल्स आर गोना मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट्स गोना बी 1 point. या. And the second point is going to be to when you say that it's going to be where it's going to the poles are going to attract और उसकी वजह से attraction होगी. Yes. नहीं. Part C. State the effect on the magnetic field of reversing the direction of current.
डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. सही है. सो चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हैं. यू कैन से दैट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन से पोल्स बिकम ऑपोजिट. एग्जैक्टली. नहीं तो अगेन दोनों नहीं लिखने, दोनों में से कोई भी एक जो है वो एक्सेप्टेबल होगा. अगर आप लिख देंगे पोल्स जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, दैट्स एक्सेप्टेबल. अगर आप कह दें कि भाई नहीं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल. दोनों चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल होंगी. Reducing the size of the current. What's going to happen to the magnetic field when you reduce the size of the current? Magnetic field क्या हो जाएगी, weak. So magnetic field becomes weak. सही है. अब यहां पे अगर आप सिर्फ जो है वो becomes weak लिख दें, acceptable. सही है. बी एज प्रिसाइज इन योर वर्ड्स एज पॉसिबल. ठीक है. ज़्यादा वर्ड्स जो है वो फजूल में लंबे लंबे स्टेटमेंट्स, इंग्लिश का तो पेपर है नहीं, तो यू डोंट हैव टू नेसेसरली राइट डाउन वेरी लार्ज स्टेटमेंट्स. सो स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स विल राइट, यहाँ पे देखो, व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स विल राइट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द साइज ऑफ करंट इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम वीक. एक सिंपल सा आंसर है. बिकम्स वीक को आपने क्या कर दिया, इतना बड़ा पूरा स्टेटमेंट बना दिया. नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट. इंग्लिश का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर नहीं है. आपने बहुत सिंपल और इजी तरीके से आंसर देना है. क्या कह रहे हो? ये कहानी क्लियर है बेटा सबको? एवरीवन गेट्स दिस? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 95. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 95. Write the missing values in the empty spaces in the table. So 3 empty spaces, 3 values. Television की values given है, water heater की values लगानी है हमें. You have been given the mains voltage, you have been given the current. हमें power चाहिए, तो how do you relate power with the current and voltage? Power is equals to VI. Power is equals to V, the potential difference, into I, the current. So 240 into 12.6 जो है वो कितना हो जाएगा? That's going to be 288, and then as in 2880, and फिर आगे 0.6 ऐड करेंगे तो 14.4 ऐड हो जाएगा, या 144 ऐड हो जाएगा, सॉरी, या 144 ऐड हो जाएगा. तो 2880 plus 144 is going to be 3024. 3024 है, जल्दी करो. 3024. ऑल राइट. सो 3024 वॉट्स. ठीक है. पावर इन किलो वॉट्स कितना हो जाएगा? किलो वॉट्स में कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाय 1000. एग्जैक्टली. सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी 3.024 वॉट्स. एनर्जी यूज्ड पर डे इन किलो वॉट आवर्स. टाइम यूज्ड पर डे कितना है? 0.5. टाइम यूज्ड कितना है? 0.5. किलो वॉट आवर्स का मतलब क्या है? आपने किलो वॉट आवर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. सो 3.024 इंटू हाफ इज गोइंग टू बी 1.512. सही है. 3.024 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो है वो 1.512 होगा. सिंपल. ये आंसर्स लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये आंसर्स लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैन समवन गिव मी अ रीजन व्हाई? नहीं. यूनिट ऊपर दिया हुआ है टेबल के अंदर. अगर ऊपर यूनिट दिया होता है तो आपने नीचे नहीं लिखना होता. द आंसर्स आर नॉट करेक्ट टू 3 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 3.024 इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. वेरी लाइकली कि इस आंसर के ऊपर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ, ऊपर कहीं पे भी 4 SF नहीं दिए हुए. आपको 3 SF दिया हुआ है. 1.20 3 SF, 0.288 3 SF, 2.50 3 SF के ऊपर है सारे आंसर्स. तो जो वैल्यूज आप प्लग इन करोगे वो भी 3 SF के ऊपर होना चाहिए. वो 4 SF के ऊपर अगर डालोगे तो आंसर गलत मार्क होगा. इवन दो दीज आर करेक्ट वैल्यूज, द आंसर विल बी मार्क्ड रॉन्ग.
वैल्यूज सही हैं, वैल्यूज गलत नहीं है, लेकिन आंसर फिर भी गलत मार्क होगा, तीनों मार्क्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 4 SF के ऊपर आंसर दिया है। सो अगेन द करेक्ट वैल्यूज वुड बी 3020, 3.02, 1.50, नहीं 1.51, 1.51। बेटा राउंड ऑफ करना है 3 SF के ऊपर। मैथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी मैथ में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, पूरा चैप्टर है SF के ऊपर बेटा। 3 पॉइंट बेटा थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है? कौन से नंबर की बात कर रहे हो बेटा? कौन से क्वेश्चन, कौन से फिगर की बात कर रहे हो? सो 3.024 है ना, तो 3 पहला आपका होगा, 0 दूसरा सिग्निफिकेंट है और 2 तीसरा सिग्निफिकेंट है। 2 के आगे ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, तो फिर राउंड ऑफ हो जाएगा। नहीं ये 2 है बेटा। This is 2 right here. So again, these are the values that are going to be accepted as correct answers. मजे की बात यह है कि ये वैल्यूज अगर आपने आगे जाके क्वेश्चंस में यूज किया तो आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। यूज 3024, 3.024, 1.512 करना है, लिखना नहीं है। यूज वही एग्जैक्ट वैल्यूज करनी है, लिखनी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। So why is more power needed for the water heater than for the television? तो has a higher resistance, greater, नहीं वो तो यही तो पूछ रहा है कि ज़्यादा पावर क्यों चाहिए। तो वॉट, टेक्निकली क्वेश्चन आपको बता रहा है कि वॉटेज ज़्यादा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों वॉटेज ज़्यादा है। क्योंकि उसके थ्रू ज़्यादा करंट पास कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस टीवी से ज़्यादा होगा। So again, could be any answer. So you can say it requires more current than television. So yeah, this requires more current than the television. The water heater is connected to the main supply. Explain why a 3 ampere fuse would not be suitable. Fuse का मतलब पता है सबको? खैर आजकल फ्यूजेस इतने यूज़ नहीं होते। फ्यूज़ जो है इट्स अ सेफ्टी फीचर। फ्यूज़ जो है वो लगाया जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वायर है, ठीक है, उसके अंदर लगा होगा फ्यूज़। फ्यूज़ का सिंबल जो है दैट्स द सिंबल फॉर फ्यूज़। सही है, होगा क्या, फ्यूज़ जो है वो एक बहुत ही पतली सी वायर का बना होता है। अगर फ्यूज़ की रेटिंग से ज़्यादा करंट उसके थ्रू पास होगा तो वो नहीं पास होने देगा। वो वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो वायर क्या हो जाएगा, वो वायर कहाँ गया। अगर फ्यूज़ की रेटिंग से ज़्यादा करंट पास करोगे फ्यूज़ से, तो फ्यूज़ की वायर जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। फ्यूज़ की वायर ब्रेक हो गई, नो मोर करंट पासेस थ्रू। एंड अगेन इट्स अ सेफ्टी फीचर। अब आजकल जो है वो सर्किट ब्रेकर्स यूज़ होते हैं फ्यूज़ की जगह पे। सही है, पहले फ्यूज़ यूज़ होते थे। सर्किट ब्रेकर का आसानी क्या है, सर्किट ब्रेकर अगर आपका ट्रिप हो जाता है तो आप जाते हैं वापस से स्विच ऊपर करके आ जाते हैं। फ्यूज़ का मसला ये था कि क्योंकि एक बार वायर टूट गया, अब आपने वो फ्यूज़ निकाल के उसकी जगह पे क्या करना होगा, दूसरा फ्यूज़ जो है वो फिट करना होगा, तब कहीं जाके चीज़ें चलेंगी, वरना चीज़ें नहीं चलेंगी। सो अगेन आपका जो वाटर हीटर है उसके थ्रू कितना करंट पास कर रहा है, 12.6 एम्पेयर्स। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई 3 एम्पेयर का सूटेबल क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स आपका जो वाटर हीटर है इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर करंट देन द 3 एम्पेयर फ्यूज विल अलाउ टू पास। सही है, सो 3 एम्पेयर थ्री एम्पेयर will not allow 12.6 amperes to pass through it.
and will keep on breaking down. सही है. अगर आप 3 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे और बार बार 3 ही एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो बार बार क्या होता रहेगा, ब्रेक होता रहेगा. वो बार बार जो है वो क्या होता रहेगा, इट्स गोना ब्रेक डाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? ये गाने क्लियर है? अच्छा, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 96 में यू हैव अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट. इवन दो कि हमने नाम से पोटेंशियल डिवाइडर नहीं किया, यू स्टिल नो द कॉन्सेप्ट कि सीरीज़ के अंदर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और सीरीज़ के अंदर करंट क्या रहता है, सेम रहता है. नेम द कॉम्पोनेंट एक्स. वी हैवंट डन दिस. कॉम्पोनेंट एक्स जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स है वो नहीं किया है. ये जो कॉम्पोनेंट एक्स है, इट्स अ लाइट एमिटिंग डायोड. व्हाट इज इट? सॉरी, लाइट डिपेंडेंट resistor. ये क्या है? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. जहां पे भी आपके पास इस तरह से एरोज बने होंगे पॉइंटेड टूवर्ड्स अ रेजिस्टर इन अ सर्कल, दैट्स अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर. नाम से क्या समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ऑन व्हाट? लाइट. मीन्स अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक LDR हो गया, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, और एक थर्मिस्टर हो गया. थर्मिस्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? थर्मिस्टर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. थर्मिस्टर किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे. सो नाउ दोनों जगह पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो उल्टा होता है. रेजिस्टेंस जो है वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है. मींस LDR, लाइट ज़्यादा कर दोगे तो LDR की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. आपकी रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा क्या करेगी? उल्टा करेगी. LDR अगर ब्राइट लाइट है तो LDR ऑटोमेटिकली उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. थर्मिस्टर, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लाइट ऑटोमेटिकली क्या हो, जो रेजिस्टेंस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो आपका जो रेजिस्टेंस है विल ऑलवेज बी ऑपोजिट द फिजिकल क्वांटिटी. नहीं, इट्स नॉट इन प्रोपोर्शंस टू ईच अदर. इनवर्स प्रोपोर्शंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, दैट्स समथिंग डिफरेंट. सही है. इनवर्स प्रोपोर्शंस, यस, दैट्स मैथमेटिकली क्वांटिफाइबल, बट यहाँ पे नॉट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. सही है. सो ओवर हियर यहाँ पे अगेन द आइडिया इज वेरी सिंपल. अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि रोज़ कितने घंटे पास पेपर सॉल्व करने? हाँ, जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही. 6 घंटे पास पेपर्स रोज़ के सॉल्व करोगे तब कहीं जाके आपकी पूरी 2002 से लेके 2003 से लेके 2022 की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट होगी. अब फ़ायदा क्या है? एटलीस्ट दिस वे अब जो हम कर रहे हैं कि मैं हर क्लास के अंदर जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके जो है वो डाल रहा हूँ, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके घर पे कोई भी होमवर्क नहीं होगा. वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी डूइंग ऑल द पास्ट पेपर्स हियर. घर पे आपका होमवर्क ये होगा कि यही चीज़ आप घर पे जाके जो है वो रिवाइज कर लें. सही है. और जो दूसरी क्लासेस की वीडियो है वो घर पे जाके आप देख लो एंड मेक श्योर दैट यू डू देम, अंडरस्टैंड देम, एंड इफ़ यू हैव एनी ट्रबल तो आप अगले दिन आके क्लास में, या जब भी वीडियो में पोस्ट करूंगा उसके नेक्स्ट दिन आके क्लास में आप पूछ लेंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, ये एक बार वापस एक्सप्लेन कर दें, तो आई एक्सप्लेन इट अगेन एज वेल. दैट्स नॉट अ बिग डील. सर ये वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि मैं फिर वहाँ से जो है वो जान छुड़ा लूँगा. अगर आपको कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आ रही, आई अंडरस्टैंड कि जाहिर सी बात है हर बात वीडियो के अंदर नहीं समझ में आती. हो सकता है कि उस वक्त स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन पूछा हो आपके जहन में कोई डिफरेंट सवाल आ रहा हो. सही है. सो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट टू कम टू मी आफ्टरवर्ड्स के सर ये क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो आप एक्सप्लेन करते हैं. एवरीवन गेट्स दिस, एंड दिस गोज फॉर ऑल अदर सेक्शंस हु आर लिसनिंग टू दिस वीडियो एज वेल. तो खैर, लाइट स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वेरीज एज द लाइट शाइनिंग ऑन इट बिकम्स ब्राइटर. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कंपोनेंट एक्स का नाम याद नहीं आ रहा बी पार्ट के लिए, आगे सी पार्ट में क्या कह रहा है? लाइट शाइनिंग ऑन द कंपोनेंट.
तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको कनेक्शन मिल जाना चाहिए कि यार ये लाइट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी कंपोनेंट, और लाइट से रिलेटेड हम सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ते हैं और वो क्या है, इट्स अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो अक्सर औकात ये होगा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही हो, आगे वही चीज़ जो है वो लिख दी जाएगी, रिपीट कर दी जाएगी और वहाँ से आपको याद आ जाएगी। तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर समथिंग, कोई चीज़ है कहीं पे आपको याद ना आ रही हो, उस क्वेश्चन को आगे पढ़ा करो, रीड द क्वेश्चन। उससे होगा ये कि आपको एक क्लू मिल जाएगा कि यार ये चीज़ क्या है, और याद आने के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सही है। So always remember, whenever you can't understand a question, or let's say for example you can't remember some component, or you can't remember a statement, or you can't remember something about a particular question, always read on. आगे रीड करो, बैठ के सोचने में टाइम ज़ाया नहीं करो। अभी याद नहीं आ रहा, लेटर याद नहीं आएगा, वेरी लाइकली 90% चांसेस के अंदर वो बाद में याद नहीं आता। सही है, अनलेस कि आप बाद में कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो उसकी तरफ जो है वो इशारा करती हो। So now moving on, state and explain how the potential difference across x varies as lightning shining on it becomes brighter. So x के ऊपर light जो है वो bright की जा रही है. So what's going to happen to the resistance of x? X की resistance क्या हो जाएगी? It's going to become less. And if the resistance across x decreases, the potential across x will what? Increase or decrease? It will decrease as well. सही है. So what's going to happen to the potential difference across x? Because as more light shines on x, its resistance will decrease. If its resistance will decrease, the potential difference across it will also decrease. Does that make sense to everyone? Let me give you an example. इस चीज़ को हम क्वांटिफाई कर लेते हैं. Let's say for example अगर आपके पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, it's connected across a potential difference of 6 ohms and 9 ohms. Hello, assalamu alaikum. I have 3450 years. ठीक है, अगर हो सकता है कि 4 किलोमीटर आप किसी और के साथ जो है वो इनको हाँ थर्ड मैं ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि असल में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा और ये आ जाओ नहीं वो पेपर में उसके हिसाब से बनाया असल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा था लेकिन फिर इवेंचुअली आई थॉट कि मेरा एक ऑफ भी हो गया था तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यार मेरे पास थोड़ा कर दिया था तो इस वजह से फिर सिलेबस में कर दिया था और टेस्ट भी उसके हिसाब से वैसे तो मैंने देखा है सारी चीज़ें देखिएगा कोई चेंजेस ऑफ PDF है आप प्रॉब्लम शायद चेंजेस ना कर पाएँ तो बता दीजिएगा। अच्छा जी, सो हम जो है वो ये एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे, यहाँ पर आ जाओ वापस बेटा एवरीवन। हम जो है ये एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे, खामोश
क्यों बेटा यूट्यूब पे बेइज्जती करवाने चाह रहे हो अपनी? ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जा रही हैं, तो जो इसमें बेइज्जती होगी ना आपकी वो भी यूट्यूब पे जाएगी। और फिर जो है, अच्छा अब मैं नाम बुला के बेइज्जती करूँगा। हाँ, दैट्स गोना बी बेटर राइट, ताकि सबको पता हो कि किसकी बेइज्जती की जा रही है। हाँ, तस्वीर नहीं होगी। चलो शाम साढ़े, क्या बोल दे हाँ। उसके बाद फिर आपके साथ क्या होगा, यू नो दैट राइट, सब पता होता है। ओहो, हाँ रात को 9:30 बजे घर गया। वापस बोल। ये कौन साहब है? इन साहब का नाम ज़रा बताइए। मोहम्मद। हाँ नहीं भाई, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा चलें वापस यहाँ पर आ जाएं बेटा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्किट राइट हियर। लेट्स से कि 10 वोल्ट्स का यहाँ पे जो है वो क्या है, ओवर हियर 10 वोल्ट्स इज बीइंग प्रोवाइडेड। लेट्स से आई वांट टू डिवाइड द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज़ करते थे? R अपॉन आर टी। यस, सो R अपॉन आर टी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। आर टी यहाँ पर कितना होना चाहिए? 15, सही है। सो आर टी इज गोना बी हाउ मच? 9 + 6, that's going to be equals to 15 ohms. All right. So R upon RT for 9 is going to give me 9 upon 15 into 10, which is going to be equals to 6, and 6 upon 15 into 10, which is going to be equals to 4 volts. ऐसा ही है, अग्रीड, यही होगा। आपके 9 ओम के रेजिस्टर को कितने वोल्ट्स मिलेंगे? 9 ओम वाले रेजिस्टर को दैट विल रिसीव 6 वोल्ट्स, एंड जो 6 ओम्स वाला रेजिस्टर है विल गेट 4 वोल्ट्स। एवरीवन ओवर हियर। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वी चेंज द सर्किट बाय अ लिटिल बिट। हम सर्किट को जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग 9 हम कहते हैं कि भाई दिस राइट हियर इज 4 ओम्स एंड दिस राइट हियर इज 6 ओम्स। तो जो 6 ओम्स वाला रेजिस्टर है वो चेंज नहीं हो रहा बेटा, इनफ। जो 6 ओम्स वाला रेजिस्टर है वो चेंज नहीं हो रहा। जो 9 ओम्स वाला रेजिस्टर था उसका हमने रेजिस्टेंस कम करके कितना बना दिया है? 4 ओम्स। ऑल राइट, अगेन द सेम 10 वोल्ट्स आर बीइंग, बेटा आमना क्या हुआ? सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? The 4 ohms is going to have 4 upon 10 into 10 volts. So इसके अक्रॉस 4 volts पास करेंगे। अच्छा 10 में से 4 अगर इसके पास जा रहे हैं तो 6 volts is gonna be across the 6 ohm resistor. So अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनिशियली जब आपका रेजिस्टेंस 9 ohms था तब 6 volts जा रहे थे। अब जब आपका रेजिस्टेंस 4 ohms हो गया है तो अब सिर्फ 4 वोल्ट जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कम होने से आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या हो गया है? कम हो गया। सही है। सो दैट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट्स गोना हैपन विद कंपोनेंट एक्स एज वेल। एक्स का जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एवरीवन मेक सेंस? तो क्लियर है ये बात सबको? So again, state and explain how the potential difference across X varies as the light shining on it becomes brighter. So very simple, resistance decreases, hence potential difference also decreases. ये इसका आंसर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको क्लियर है? ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 97. 3 cells are connected in series making a battery as shown in figure 8.1. The EMF of each cell is 1.5 amperes. Resistance of 15 ohm is connected to the battery. अगर आपके पास cells जो हैं वो सीरीज में होंगे,
तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. यू आर राइट. 1.5 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स. तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्ट्स. मोहम्मद मुनीब मसून जावेद. सो ट्रिपल एम जे, ट्रिपल एम जे. क्या हुआ, जोर से बोल. कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो जाते हो तुम लोग, कहाँ अजीब सी कोई टेंजेंट जो है वो पकड़ लेते हो. हाँ. व्हाट्स द टोटल, बोल दे बेटा, बोल दे बोल दे बोल दे. अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ. व्हाट्स द टोटल EMF ऑफ द बैटरी. So the total EMF of the battery of course is 4.5 volts. Calculate the current in the circuit. State the equation you use. अगर यहाँ पे equation नहीं लिखेंगे marks नहीं मिलेंगे. यहाँ पे question specifically बोल रहा है equation लिखनी है, मतलब formula या equation जो भी आप use कर रहे हो वो लिखनी है. सही है. So current और potential और resistance वाला कौन सा formula है? I is equals to V upon R या V is equals to IR, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. V is equals to IR रीअरेंज कर दो तो I is equals to V upon R बन जाएगा. So V is equals to IR, तो रीअरेंज करेंगे I is equals to क्या बन जाएगा, V upon R. V कितना है, that's 4.5. R कितना है, that's 15. So your answer is going to be 0.3 amperes. ठीक है. अगेन अगर मैं सिर्फ 0.3 लिखता हूं मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द, very important to write the unit. All right. A battery can be made from cells connected in parallel. State one advantage of connecting the cells in parallel. अगर आपके cells जो है वो parallel में connected हैं तो क्या advantage होगा? फर्क सिर्फ इतना है कि what's going to happen, सीरीज के अंदर आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है लेकिन पैरेलल में आपका करंट इंक्रीज हो जाता है. नंबर वन. नंबर टू ये है कि अब वो करंट जो है वो तीन बैटरीज के बीच में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब एक बैटरी को पूरा करंट नहीं देना होगा या एक सेल को पूरा करंट नहीं देना होगा. तो उससे व्हाट्स गोइंग टू हैपन, योर सेल्स आर गोइंग टू लास्ट लॉन्गर. सो सेल्स स्लैश द बैटरी will last उन्हें पता है ना कि स्टूडेंट्स लंबी करने के आदी हैं. अच्छा बेटा, कहाँ पास पेपर्स क्या हैं? मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि बेटा आपसे रोज पास पेपर्स लाने. पैसे लाया पास पेपर्स के, पैसे लाया पास पेपर्स के. अच्छा जी. So this is question number 98. All right. This is question number 98. ये क्या चीज नजर आ रही है डायग्राम में आपको? What is the diagram showing? It's an AC generator. स्लिप रिंग्स जो है वो AC जनरेटर के अंदर यूज होती है. DC मोटर के अंदर क्या चीज यूज होती है? इट्स अ कॉम्यूटेटर. DC मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर यूज होता है. स्लिप रिंग्स AC जनरेटर्स में यूज होती हैं. दैट्स द मेजर डिफरेंस. हाँ, वो तो दोनों के अंदर होते हैं. कार्बन ब्रशेस आर कॉमन टू बोथ.
Now, question number 98. Figure 3.1 shows the construction of a simple AC generator. Kar upar likha hua hai. When the coil is rotated, an EMF is induced in the coil. Explain why the EMF is induced. 2 marks. When the coil rotates, the जब कॉइल रोटेट करेगा तो क्या होगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है. Yes, so as the coil rotates, the magnetic field across the coil changes, inducing. Beta Munib, नहीं, इनफ. मुझे पता है घर पे कोई नहीं सुनता, इस वजह से यहाँ पे सुनाने आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कंट्रोल करें. हाँ, वो इकलौतों की वैसे ही कोई नहीं सुनता ना. अच्छा जी, स्टेट द पर्पस ऑफ द स्लिप रिंग्स. स्टेट द पर्पस ऑफ द स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स जो है वो क्या करती हैं? दे प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्किट एंड द कॉइल. जो आपका आउटपुट है उससे कनेक्ट कर रही है ना. कार्बन ब्रश बेसिकली अलाउ करती हैं कि आपका कॉइल रोटेट. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉइल रोटेट कर रहा है, आपका सर्किट जो है वो तो उसके साथ साथ रोटेट नहीं कर सकता ना. अगर 200 किलोमीटर दूर कहीं जनरेटर जो है उसके अंदर कोई कॉइल रोटेट कर रहा है, हम तो साथ में रोटेट नहीं हो सकते ना. तो आपका कॉइल इंडिपेंडेंटली रोटेट होता रहे, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्लिप रिंग यूज़ करते हैं. टू सो अगेन द पर्पस ऑफ स्लिप रिंग्स इज, कार्बन ब्रशेस जो है वो कार्बन ब्रशेस का पूछ थोड़ी रहा है, वो स्लिप रिंग्स का पूछ रहा है बेटा. सो अगेन अलाउज independent rotation of the coil without rotating the output circuit. सो आपका जो आउटपुट सर्किट है वो रोटेट नहीं होगा. कॉइल रोटेट होगा, आउटपुट सर्किट रोटेट नहीं होगा. कॉइल सुकून से रोटेट होता रहे, आउटपुट सर्किट पे कोई फर्क ना पड़े. इस वजह से हमारे पास क्या होता है? वी हैव दीज स्लिप रिंग्स. द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेंजेस लॉ. स्टेट लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ करवाते हुए मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए. सो लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट इज, Lenz's law states that the induced current, yes, friend zone hai, opposes the change inducing the current. Alright, so induced current opposes the change inducing the current. So again, this is a statement that you need to remember for Lenz's law. The induced EMF can be increased by rotating the coil faster. State one other way in which the EMF can be increased. Coil का area increase कर देंगे, EMF क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. Practically not applicable, but yes, answer is acceptable. ठीक है. उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट्स जो है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे. सही है. सो P2. सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट आंसर्स यू कैन हैव ओवर हियर. इंक्रीज द एरिया ऑफ द कॉइल, increase number of turns, use
stronger magnets. मुनीब इधर आ गया जा. मोहम्मद कुर्सी लेकर उधर जाओ. हाँ, कॉइल का एरिया इंक्रीज कैसे करेंगे? अगर आपके पास इतना कॉइल है, आप इसका एरिया इंक्रीज कैसे करोगे? यू यूज अ लार्जर कॉइल. ईएमएफ इंड्यूस बढ़ जाएगा ना. अब वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको याद रखना है कि बढ़ेगा कैसे बस. हाँ, अगर जो मैग्नेट आप यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा. हाँ, आपके नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स बेटा. नोट्स के अंदर जो इंडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर. अच्छा अच्छा जी, ये कहानी क्लियर है भाई. अब आई नीड अ ब्रेक.